we are starting with a revision session. Ninth. Okay, here is the cylinder. Can you tell me what is the curved surface area? Total surface area and volume. Very good. Anybody? 2 pi RH, 2 pi R and R plus H, pi R square H. How we can solve it? Curved surface area. We can say 2 pi RH. And how we can solve this? Total surface area 2 pi R plus H. And what is the volume? Pi R square H. Pi R square H. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन का एक सिंपल सा हमने क्या किया था, स्ट्रेट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन किया था. ओके, नाउ वन क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस एंगल. देखिए, मैं छोटा सा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक. कंपास नहीं यूटिलाइज कर रहा बच्चे, सिंपल सा लिखा. राइट डाउन दिस Angle between 30 and 15. No. Check The it. bisector of 45. 45. So first of all, what we can do, check my point, what we can do. First of all, we can draw the angle, this arc. Now with the same point of view, 2, and then we can draw this one. तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चे? 90. 90 degree. This angle will be 90 of degree. 90 degree. My next step for this question. Now from this point, suppose this point is P1 and this point is P2. Now I can make 2R. They will cut at some point. अब इसके next step क्या होगा बच्चे? We will draw this angle. और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 degree. It will be of 45 degree. अभी एक काम और करना है बच्चे आपने. Now from this point and this point, draw 2 arcs. Okay, now join this. ये कितना एंगल होगा बच्चे? This is the required angle which you want to construct. Got my point? Yes, sir. तो ये वो फॉर्मेशन थी which you want to construct. This is the angle. और इसको हम क्या बोलते थे बच्चे? एंगल bisector. ठीक. First of all, we can draw the 90 degree. After 90 degree, we can draw the 45 angle bisector, and after 45 फिर हम वापस किस में आ जाते हैं? उसका हाफ, तो that becomes 45. अब आइए, come on to next question. ये just बच्चे रिवीजन है for full chapter, full topic, या आप कह लीजिए term 2. Here is my question. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. You are asking to collect the opinion of people. Okay, and you are asking whether you like tea or not. So on these format, 360 people say yes, they like tea.
but (140) asked they don't like tea. Now, what is the probability that people like tea? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं. Yes, yes. Sir, 360 by 500. 400. चेक कर लीजिए बच्चे. (360 by) Sir, 360 by 500. Okay. Now, one more question. If survey was conducted on 600 people, now your option. 360 by 600. Yes. Now it becomes 300, 360 by 600. And dislike 140 by 600. 140, 600. 600. Now my next question comes to you. How many people will not tell the like or dislike? Sir, 1/6. 1/6. आप चेक कीजिए बच्चे. तो if you find out the sum of these numbers, so you will find these numbers are 500s. तो अब आप क्या करेंगे बच्चे? 500 तो टोटल हो गए, whether they like it or not like it. Now your next question is, how many people are in survey? 600. तो 600 upon 600. ये बच्चे कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो neither like, मतलब they are not participating in a survey, but they are asked the question कि ये आपका क्वेश्चन रहेगा. Got my point? चलिए एक और क्वेश्चंस पे आते हैं. Before we conclude the polynomial, here is the question from polynomial. He said just simplify it. And how we can move on to this question. हाँ, कोई भी बताए कि we can start this with this way. Sir, A plus B, A minus B. देखो हम इसको कैसे कर रहे हैं. हाँ, yes, yes, yes. You know the formula A plus B whole cube. याद है किसी को? तो we will simply write it as A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. ये पहला क्वेश्चन था. Come on to next question. ये क्या हो जाएगा? A cube minus 3A square B plus 3AB square, and the last one is minus B cube. ये बच्चे सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा. And when we move to the third one, तो it becomes minus 6BA square and plus 6B cube. Whether you get my point or not. अब देखिए, now if I open all the points, तो you will get A cube plus 3A square B 3AB square plus B cube. Now open it, so you will get minus A cube 3A square B minus 3AB square and plus B cube. Here you will get minus 6BA square and plus 6B cube. Now we will simplify
8 चेक कीजिए कैसे करेंगे। a क्यूब एंड a क्यूब कैंसल्ड, 3a square b, 3a square b, 6a square b cancelled. Next, 3ab square, 3ab square cancelled. And what is left? b cube, 6b cube. Ultimately, your answer is 8b cube. बच्चे ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर फार्मूला और कुछ भी नहीं है, ये आपके जस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता था, फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता था। ओके, नाउ कम ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, सर्कल, एंड हियर यू सी द डायग्राम। ओके, यू विल फाइंड here is the diagram. This is BC. And here is a point A. AB, and this is a perpendicular bisector. ये perpendicular bisector दिया होगा बच्चे आपको. Now you will see that this is the point O. O means center. Let us suppose this is T. अब क्या होने जा रहा है बच्चे, OD को ज्वाइन करो, BD को ज्वाइन करो, OC को ज्वाइन करो, and here is your question with the number is 30 degree. Here is Y and here is X. Now tell me what is the value of X and Y in this case. X की वैल्यू क्या होगी and Y की वैल्यू क्या होगी, otherwise I will solve, don't worry. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट। कर सकते हैं ना आप ज्वाइन, and you can even join this also. Green lines means which are joined by me. तो आपने इनको क्या किया, ज्वाइन किया। तो यू विल सी दैट बच्चे क्या क्या आपको इस फॉर्मेशन में गिवन है, किस तरह से आप डिफाइन करें। देखो, जो सेंटर को मीट आउट करती है ये भी आपको 90 डिग्री दिया होता, मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया। ठीक, नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब बच्चे मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं जो आपको इसको बड़े आराम से क्या करेंगे, फाइंड आउट करें, एंड दैट इज दिस एंगल BOC। सर 120 डिग्री। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, 120 डिग्री, दैट्स ग्रेट। मैं इसी पे आ रहा था कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें और बताता हूं बच्चे कि कैसे इसको जनरेट किया गया। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि ये जो आपका CO है, दिस
दिस इज द रेडियस, और ये जो आपका BO है दैट इज आल्सो द रेडियस। ओके, इसका मतलब बच्चे ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, तो नेचुरली ये वाला एंगल कितने का रहेगा? 120 का। मेरा टारगेट ये नहीं है बच्चे, बट ये हो गया कि इफ दिस एंगल इज 120 तो आपका ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? एनीबॉडी? 60 डिग्री। 60 डिग्री, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कल, और 60 में बच्चे ये कितने का है? उसका हाफ है। तो ये पहला एंगल तो आई थिंक आपने फाइंड आउट कर दिया कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन आता है बच्चे किस में? y की वैल्यू के। तो नोट कीजिए, ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री का था टोटल? 30 डिग्री का था, बट मैंने उसमें से जस्ट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ वी विल मूव टू दिस सिचुएशन? देखिए क्या होता है, अगर ये आपका एंगल बच्चे 60 डिग्री का निकला तो ये AB और AC तो इक्वल होंगी, तो ये पूरा एंगल भी कितने डिग्री का आएगा? 60, एंड दिस एंगल इज आल्सो ऑफ 60 डिग्री। तो दोनों कितने कितने क्या आएंगे? 60 डिग्री के क्या बन जाएंगे? एंगल बन जाएंगे। अब आप नोटिस कीजिए कि अब हम थोड़ा सा एक अलग लेवल पे आ रहे हैं बच्चे, कि ये भी 60 हो गया, ये वाली फॉर्मेशन भी आपके पास 60 डिग्री की बन रही है। अब जो आपने यहाँ पे नोटिस करनी है चीज, वो ये नोटिस करनी है कि ये जो आपका एंगल, इसको अगर मैं पॉइंट E ले लूं, एंगल EBA है, ये हमने डिफाइन कर दिया कि ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। इसमें दो एंगल है, कौन कौन से? देखिए, एक एंगल है आपके पास एंगल ABD, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, एंड दूसरा एंगल है Y, जिसकी वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। अच्छा, अब बताओ कि जब हम इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, अब नोटिस करना जो मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, ये एंगल था 30 डिग्री, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, ये एंगल था 30, ये बताओगे कितने डिग्री का होगा? सेम 30 का होगा ना, बिकॉज OA इज द रेडियस, OA इज द रेडियस एंड OB इज द रेडियस। अच्छा, अगर ये, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 120 का। ओके, और Yes, sir. हाँ देखते जाइए, कोई बात नहीं। ये एंगल आपको कितने डिग्री का दिया हुआ था? 90 डिग्री। तो आपके पास अभी तक आ चुका है 120 प्लस 90, यानी 200 एंड क्या आ चुका है? 10 आ चुका है। तो बच्चे अगर आप इस पूरे एंगल को देखेंगे, इस पूरे एंगल को, तो 360 से जब आप 210 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये 150 का हुआ। और बच्चे अगर ये 150 का एंगल हुआ, हाँ जी बच्चे। सर इसमें 120 तो 2 बार है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला एंगल बच्चे आपके पास कितने का हुआ? 150 का। इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितने डिग्री का है? 30। तो 13 में ये भी 15 और ये भी 15, और ये टोटल एंगल कितने का था? 30 का। तो इसका मतलब y की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 15 रहेगी। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है तनवीर, वेरी गुड बच्चे, बट आई डोंट नो कि आपको इसमें पता लगा होगा कि नहीं, बट इसमें सो मेनी फार्मूलाज या हमारे
डेरिवेटिव के सॉरी सर्कल्स के जितने भी फॉर्मेशन थे इसमें हमने क्या कर दिए, इन्वॉल्व कर दिया। सर इसमें सर एक डाउट था कि सर बिल्कुल। जैसे सर जो ट्रायंगल एबीसी है सर उसमें से जो एंगल सर जो बीएसी है सर वो पूरा सर 60 डिग्री का था। तो बिल्कुल उसके बाद सर हमको कैसा गिवन था कि सर जो एईएस है वो एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि सर जो एक्स है सर वो 30 डिग्री का हो गया। नहीं बच्चे, उसमें मैं बताऊं क्या बताता हूँ, एंगल बाइसेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे मीट आउट कर रहा है। ओके, आपने Yes, एक sir. थ्योरम एक थ्योरम पढ़ी थी इसी में सर्कल में, मैं थोड़ा सा उस पे आ रहा हूं आपको, ठीक है। इन अ सर्कल इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो हमने डेफिनेटली कहा था कि वो आगे वाली लाइन को 90 डिग्री पे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करेगी तो बच्चे अगर हम इनको ऐसे ड्राउट कर लेते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी ना। Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो अपने आप ही क्या हो गया, Equal. मतलब बाइसेक्टर बन गया ना, विच यू वांट टू आस्क। Yes, sir. चलिए अब सर एक एक और सर हम्म, एक और डाउट था सर फिगर बिल्कुल। से। हम्म। सर उसमें सर जो ए बी सर ए सी के बराबर है तो सर वो कैसे? किसमें? सर इस ट्रायंगल ए बी सी में सर ए बी ए सी के बराबर है तो तो सर बच्चे वो मैंने कैसे? इसी से जो अभी अभी आपने देखा, अगर ये सीपीसीटी हो गई तो ये भी क्या हो जाएंगे, ओके सर। इक्वल हो जाएंगे ओके ना। सर। और इक्वल हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो सो दैट हमने सभी एंगल को कितने डिग्री का ले, 60 डिग्री। 60 डिग्री ले लिया। सर Got एक it? मिनट सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हुआ सर मुझे समझ में नहीं आया। बच्चे ये एंगल तो वैसे 60 हो गया था, ठीक है। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों वाले अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। इक्वल। तो यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल एंगल का मतलब है ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। ओके सर। ओके गॉट सर। इट? चलिए यस सर। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ आ रहा हूं, एंड आई थिंक यू कैन एंजॉय दिस क्वेश्चन। दिस इज rectangle ABCD, okay, and ये आपके पास कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, एंड दिस इज 144 डिग्री। आपको बच्चे एंगल फाइंड आउट करना है, दिस वन BEF, हाउ यू विल फाइंड इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम आगे मूव करें। Sir, हम्म, sir, ABCD is a rectangle. हाँ, ABCD इज अ रेक्टेंगल। Okay, sir. सर 74 डिग्री। सर 84 डिग्री। Sir, 84 degree. मैं तो जो आप कहेंगे वही मान लूंगा, बट यस सॉरी सर 84 डिग्री। 84 डिग्री कह रहे हैं आप, तो चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, हाउ वी विल मूव टू द 84th डिग्री। हाँ जी, एनीवन? बच्चे ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। तो इसका रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का रह जाएगा, सर 60 डिग्री। 60। ये 144 है, तो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा बच्चे, ड्यू टू लीनियर पेयर। एम आई राइट? यस सर। ये Yes, आपके sir. पास क्या बन गया बच्चे, 36. 36।
Now you can see in this triangle, this is a triangle, and sum of all the angle of this triangle be 180. 180 180 degree. degree. तो that's why ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 84 degree. 84 degree. 84 डिग्री। कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, तो ये भी हमारे एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये मैं प्रैक्टिकली करूंगा, हमने कंस्ट्रक्शन किया था लास्ट में, तो ही सेड ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी in which BC is 4.6, angle B is equal to 45 degree, and sum of AB plus BC is equal to 8.2 centimeter. ये जस्ट मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूं कि हाउ वी विल मूव ऑन टू दिस वन। तो इसको भी चेक कर लीजिएगा कि कैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक, तो चेक कीजिए बच्चे, व्हाट वी कैन डू। उस दिन भी मैंने आपको, हाँ जी, सर वहाँ पे AB plus AC होगा ना? ए बी, हाँ यस, इट इज ए बी प्लस सी ए या ए सी। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रा आउट BC, और BC कितनी लेंगे हम, सॉरी 4.6, सभी को याद है? नाउ माय नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बच्चे इसमें, आवर नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द एंगल, इसको हम एंगल बी कहेंगे और इसको क्या कहें, इसको पॉइंट क्या कहेंगे, सी, एट एंगल बी। जैसे आप ड्रा आउट करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद 90, कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 90, देन फाइंड इट्स बाइसेक्टर, तो इसका क्या कर दीजिए, बाइसेक्टर फाइंड आउट कर दीजिए। जैसे ही आप इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो दिस इज द वे। हाँ, आगे आप बताएंगे क्या होता है। So then we take a radius of 8.2 centimeter on the compass. Yes, we take the radius or we can open up the compass at 8 point, कितना बचे, 2 सेंटीमीटर, and mark that point, और यहाँ पे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा like this, and we can suppose that point as D। और next step क्या होता है बच्चे, we can join CD and then find the perpendicular bisector of this CD। कैसे, C पे कंपास रखिए, मोर देन हाफ ओपन कीजिए, D पे कंपास रखिए, मोर देन हाफ ओपन कीजिए, और इनको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द पॉइंट, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल join this AC। Now what you will get, this is the required point, और इसको हम क्या बोलते हैं, required triangle ABC। and बच्चे you know that the sum of this side AB and this side AC is
8.2 centimeter. 8.2 centimeter. And one more thing is there. When difference of two sides are given. I think वो आप जानती होंगे कैसे चलता था. Okay. Now come on to the next point. अच्छा बच्चे, this question is given to me if px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6. Now he said factorize this. तो हम कैसे factorize करते थे बच्चे इसको इन क्वेश्चंस को? Anybody? Excuse me, sir. Yes, बच्चे. Yes, carry on. Factor of, yes. Yes, Meera, how we start this to factorize this question? So we can do it by splitting the middle term. No. In cubical, we cannot go that way. That is for quadratic only. Cubical में नहीं हम जा सकते बच्चे वैसे. Very good. And one answer came to me. That is called hit and trial method. First of all, we will check the constant figure. कि 6 के factors क्या है बच्चे? So you will see 6 can be divided by plus or minus 1. 6 can be divided by plus or minus 2. And 6 can be divided by plus and minus 3. And 6 can also be divided by plus and minus 6. तो बच्चे we are starting with the method of hit and trial. Hit and trial का मतलब बच्चे कैसे? First of all, we will put value 1 here. Okay, 1 minus 4 plus 1 plus 6. तो it is not equal to 0. इसका मतलब x is equal to 1 is not a factor. अब मेरा next step होगा बच्चे, I will put -1 here. तो जैसे ही मैं इसमें -1 पुट अप करूंगा तो I will get -1 cube 4 times -1 square -1 plus 6. So what we can do? -1 -4 -1 plus 6 is equal to 0. And here we got the clue. What is the clue? Ki x is equal to -1 is the factor. And if I write it properly, so I will get ki x plus 1 is the factor. How many you know the long division? So I know it. Okay. बाकी बाकियों को भी तो हाँ बाकियों को भी आती होगी. तो व्हाट वी कैन डू, वी विल जस्ट स्टार्ट. अब देखिए इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन. नाउ डिवाइड योर ओरिजिनल टर्म x क्यूब -4x स्क्वायर plus x plus 6 with x plus 1 and that is with the long division. और हम कैसे करते थे बच्चे? x square means x cube plus x square. Change the sign. Cancelled. -5x square plus x plus 6. Now -5x you will get -5x square -5x
अब क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसल इट, यू विल गेट 6x + 6। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, अब नोट कीजिए, द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज x + 1 and x² + 5x, sorry, -5x + 6. So we can say the factor of that particular term is x + 1 x² -5x + 6. अब पता बच्चे आपका स्टेप क्या होगा, now what we will do, हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जैसा आप कह Sir, रहे हैं। splitting the middle term. Yes. Now we will find the factor of this particular term by splitting the middle term. So we will do it like this one, x² -2x -3x + 6. Everybody know na how to split the middle term? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So we will take x common. It becomes x -2. We will take 3 common, x -2. And here is x -3 and x -2. So you will check it. X + 1 and x -3 and x -2. These are the factors. Okay, and this is the best question in the formation. आपके पास ये क्वेश्चंस का सबसे क्या है, अच्छा क्वेश्चन सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, एंड आई नो दैट कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक, और आप कर भी देंगे। कैसे? Here is one circle and same, or we can say concentric circle is drawn with the same center, and it is given to you, one chord is passing through it like this, and this is given to you AB CD, and here is the point M. Now what I want to prove, he said if AD is 12 centimeter, BC is 8 centimeter, then we are going to find out the length of AB, CD, AC and BD. ये हमने फाइंड आउट करना है। चलिए, हाउ वी कैन स्टार्ट दैट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। Sir, by joining OB and OC. चलिए देखिए, एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने देखी होगी इसमें, इफ AD इज 12, तो बच्चे AM की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 6 ना, Yes, sir. एंड इफ BC इज 8, तो BM की वैल्यू कितनी आ गई होगी, Sir, 4. 4। तो आपको AB की लेंथ तो ऑलरेडी मिल चुकी होगी, Sir, 2. 2, 6 - 4 it is equal to 2. Same is the scene with this one, तो CD की भी कितनी आ गई होगी, Sir, 2. 2। देखिए ये क्या था बच्चे, ये वाली लेंथ हो गई 2, और अगर मैं यहाँ पे MC की लेंथ करूं, तो MC की लेंथ कितनी है, 4। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, he said AC, how we will find out AC, AM plus MC, that means 6 + 4 कितने सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। Now come on to BD, कितना लिखूं, 10 centimeter. yes,
तो हमें किसी को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. So we will simply go through this procedure. एक और क्वेश्चन देखिए. Now I'm going to the circle. And in this circle, this is the chord AB. Here is the circle O. Okay. Here is the point C. तो आप क्या कहेंगे बच्चे? AC को ज्वाइन कीजिए, BC को ज्वाइन कीजिए, ठीक। और यहाँ पे जो आपका एंगल है, दिस इज गिवन टू यू 30 डिग्री। और बच्चे ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके, what we want to find? We want to find out the value of this. Sir, 120. इतना फास्ट? Sir, 60 degree. हाँ जी, और भी बताइए कुछ। चलिए, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन 60 डिग्री, 45 डिग्री, C 80 degree, D 120. And here is the poll for you. Fill your answer in the poll. मिल गया ना पोल सभी को? यस सर। चलिए, जब तक आप पोल पे ड्राउट कर रहे हैं, बस एक चीज बता दीजिए बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? सर 45 डिग्री। 45 डिग्री। पता चला क्यों 45 डिग्री है? यस सर, क्योंकि सर जो सेंटर में से जो एंगल है उसका हाफ होगा। बिकॉज ये है सर्कल के किस पे? सेंटर पे, और सेम कॉर्ड ही बना रही है सर्कल पे। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 45 डिग्री का। अब मैंने आपसे कौन सा एंगल पूछा था? CAO। चलिए, उस पे भी आएंगे। तो आई मीन टू से दैट कि हमारे पास ये पूरा एंगल कितना रहेगा जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। अब इस पूरी ट्रायंगल में देखिए, कितने डिग्री लिखूं बच्चे? सर 105। 105। तो ये पूरा एंगल तो हो गया 105 का, एग्रीड। ठीक। मैं शायद पहले अनाउंसमेंट में थोड़ी सी गलती कर गया था, बट ही इज आस्किंग यू अबाउट दिस एंगल कि ये एंगल कितना बनेगा। अब बताओ। सर 60 डिग्री। Sir, 60 degree. Very good. Now check my point. Why we are asking this one as 60 डिग्री? इसका मतलब आप ये कह रहे हो ना कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री। 45 हाँ। डिग्री। कैसे होगा, बस ये बता दो। सर OA is equals to OB. Yes, that is the point बच्चे। ये OA is the radius and OB is the radius। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, और ऑब्वियस है कि ये अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज लेफ्ट विद 60
degree. Got my point? तो ये बचे some questions थे for your revision of term 2. Okay, and check how many has answered this question.